get a class and you are learning from a class, you by the end of the day you appear in an exam and you just pass at the margin according to the passing marks for University of Health Sciences. Later on, if you want to practice orthodontics, you can join under continuing education program. You want to learn veneers, you want to learn about the soft dentures, you can join any continuing education program after recognizing that what is your deficiency, which thing you want to practice, what is your aptitude, so you can join that. The first thing about this is that when you are a general dentist, there is no difference between the holistic approach and the single tooth dentistry. Single tooth, you have to take the blood pressure and the vitals of the patient. You have to ask for the medical history of the patient. You have to check the pharmacological things, whatever the medicines the doctor is taking. You have to check PANS, panoramic X-rays. You have to. It is your responsibility to take the follow-up, to check whether the patient is going through the osteoporosis or not. So, as a general examination, you have to check on a holistic view, and I believe all of you are doing that. If not, you are doing in any college or any institute or any department that is not being practiced. I think that is an individual problem. But otherwise, there is no single tooth dentist. Every dentist is a holistic, full body dentist, and their teeth are no different. This is for, God has made one human body. It is for our ease, for the lack of our competence कि हमने आंखें अलग कर दी, नाक अलग कर दिए, दांत अलग कर दिए, दिल अलग कर दिया, मैदा अलग कर दिया, because one human being cannot be specialist of all that. It could be only Almighty Allah who is the creator of one human being and sole creator. हमारे तो इतनी कैपेसिटी नहीं है. So we have separated dental health from other medical health just for the ease of studies, not from the body. Thank you, Dr. Aslam. Would you like to add something? Assalamu alaikum everybody. सबसे पहले तो मैं इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स की बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ. जब डॉक्टर ने मुझे इसके लिए दावत दी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा नाम है मालवी को ऐसा बड़ा हूँ तो है कि मुझे स्टेज पर बिठाया जाएगा. और पर्टिकुलरली अमंग दी सो लर्नड एंड सो कॉम्प्लेक्स लोगों के दरमियान में बैठ कर आई एम फीलिंग सो हम्बल फॉर विच आई रियली स्टैंड थैंकफुल फॉर एवरीबॉडी अराउंड. जहाँ तक इस मसले का ताल्लुक है कि हम किस तरह डेंटल एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें, इसके 4 स्टेक होल्डर्स हैं. इसमें वालिदैन, स्टूडेंट्स, टीचर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर साइड से पूरी नहीं होगी, हमारा ये मकसद किसी सूरत में भी पूरा नहीं हो सकता. उस्ताद के लिए काम है कि वो स्टूडेंट्स को इस तरह का बना दे कि वो सेल्फ लर्नर हो जाए. एडमिनिस्ट्रेशन का कमाल ये है कि वो ऐसा माहौल क्रिएट कर दे, ऐसा फैसिलिटेशन क्रिएट कर दे कि वो टीचर्स के लिए टीचिंग आसान हो जाए और बच्चों के लिए जो क्लिनिकल स्किल्स हैं वो सीखना भी आसान हो जाए. हमारे 2-3 एरियाज़ हैं जहाँ पर मैं समझता हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में काम कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि क्या हमारे मसाइल क्या हैं. एक्चुअली शुरू से लेकर हमारी जो बेसिक साइंसेस हैं उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर ओवर एम्फसाइज हो रहा है जो कि शायद इतनी रिलेटेड ना हो, और वो साइंसेस जिन पर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए वो भी अंडर स्ट्रेस चल रही हैं. तो ऑल बेसिक साइंसेस नीड टू बी रिव्यूड. What is most important for the dental students, what is not important for the dental students, so that the time बच्चे हमारे पास रहते हैं उनका इतना यूजफुल एक्सपेंडिचर हो के आगे वो डेंटिस्ट्री की बेसिक साइंस पर आ सकें. सेकेंड स्टेज में जो प्री क्लिनिकल स्किल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली प्री क्लिनिकल स्किल्स जो हैं आज तक एसेसिबल नहीं. वो हमारे पास कोई मेथडोलॉजी नहीं है कि बच्चा कितनी प्री क्लिनिकल स्किल लेगा और तब जाकर क्लिनिकल स्किल में जाएगा. ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ फलाह. इसको
इस तरह बनाया जाए कि हमें प्री क्लिनिकल स्किल के लेवल पर बच्चे को किसी सूरत में भी आगे ना जाने दिया जाए कि वो ह्यूमन बॉडी को हैंडल कर सके, और उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होना चाहिए। एंड देन कम्स द क्लिनिकल स्किल्स। क्लिनिकल स्किल्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा फिलॉसफी नहीं है। क्लिनिकल स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल चीज़ें हैं कि स्टूडेंट विल वर्क एज ए असिस्टेंट, नंबर 1। सेकेंडली, वो स्टूडेंट विल असिस्ट एंड देन वो आएगा, काम करेगा एज ए असिस्टेंट, और उसके बाद वो वर्क करेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ द कंसल्टेंट एंड द सुपरविजन ऑफ द सुपरवाइजर, सो दैट जब भी वो ट्रेनिंग फेज में से गुजर रहा है तब वो कम अज़ कम उसकी सुपरविजन किसी लिहाज से भी उस पर रैप ना हो। मैं समझता हूँ कि नो डाउट दैट डेंटिस्ट्री हैज़ प्रोग्रेस लॉट। जब से हमने ग्रेजुएट किया, इट्स नाउ अबाउट मोर देन हाफ ऑफ द सेंचुरी। डॉक्टर आसिफ अली शाह ने सबकी उम्रें बता दी, मैं इनका बहुत मशहूर हूँ। मैंने किसी का पर्दा नहीं रखा। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये कुछ ना कुछ पर्दा रख लेंगे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल पर्दादार रखे। हमारे नस्ल के लिए मशहूर है इनका। इट्स अबाउट 47 years I have graduated, और इट्स नाउ 51 when I joined the dentistry, you know। बहुत बुरा आपको। Guys, that's 50 years of experience of dentistry. So I'm sure you guys must be learning a lot. Yes, Dr. Sir. We have progressed a lot, no doubt about it. जब मैंने ग्रेजुएट किया, आप हैरान होंगे कि बहुत सी चीज़ें नॉन एग्जिस्टेंट थी, टोटली नॉन एग्जिस्टेंट। मिसाल के तौर पर आज हम समझते हैं इम्प्लांट, इट वॉज नॉन एग्जिस्टेंट। आज समझते हैं कि अच्छी एंडोडोंटिक्स हो रही है, इट वॉज नॉन एग्जिस्टेंट। फिक्स ऑर्थोडोंटिक्स बट प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट, एंड सो फोर्थ। लेकिन आज हम इस लेवल पर आ गए हैं कि फॉर एग्जांपल एंडोडोंटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़माना था जब हमने एंडोडोंटिक्स करना शुरू की तो रोटरी इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड इन द कैनाल वाज अ sin. It was considered to be sin to use the rotary instruments in the canal. Now nobody can think about it doing good endodontics with the rotary instruments, you know. And now even the CBCT guided endodontics is coming out. Even the implant cases, in the beginning there were so many limitations, but now more or less I think so that hardly 1 or 2 limitations are left behind, except in medical situations in which you can't put in implants. Otherwise all those limitations has been taken care, and so much has been done. So a lot big journey. Perfect. But are we producing at the same time, जबकि ये बहुत कुछ इंक्रीज कर दिया with the same period of 4 years? बहुत अफसोस के साथ मैं बात करूंगा कि 4 years पार्ट टाइम स्टूडेंट्स, इतना कुछ बढ़ गया, इतने कुछ सब्जेक्ट्स एक्सपैंड कर गए, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि हमारी सीनियर फैकल्टी के इस पर बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए कि ये इतना कुछ सब्जेक्ट एक्सपैंड करने के बावजूद भी हमारा 4 साल का करिकुलम रहा और पार्ट टाइम स्टूडेंट रहा। पार्ट टाइम स्टूडेंट से मेरी मुराद ये है कि 4-5 आवर्स। I think so. One of my suggestions is that at least all teaching institutions, with all due respect, should open 3 areas where students should come and do their job 24 hours. It might be very futuristic to understand, but I think it's a time we need to consider and start considering about it. For example, our libraries should remain open. Oh, that's okay. Our school has to remain open. It should not be closed. Yes, sir. And our laboratories should remain open. I wonder that when I was a student, our dental lab used to open and work for at least up to 8 o'clock at night. Dr. Asad Shah would bear me out. But nowadays, even हमने उससे भी नीचे अपने स्टैंडर्ड पहुंचे। So my request would be, all this and very learned professionals sitting along, that this is to be considered, this is well thought about it, that we need to do something more so that
our students should come and work in the skill labs, sit in the libraries and study here. Thank you so much, sir. And an absolutely enlightening answer. Alright, so I've been getting questions, so yes, please. My next question is also actually to you, so let me. Alright, yeah, sure. Okay. Hi, Kaiman. First of all, thank you very much for inviting me over here. When she asked me to come for this panel, I thought as a private practitioner what I would be able to add on the academic level. But then I thought that I'm a dentist also. And as a dentist, you know, what I felt when I was a student and when I was trained at NYU, what difference I felt, you know, in the training also. And once I'm here now for the last almost 20 years, I'm having a practice here now, and I come across many students who are really good, you know, academically. They are gold medalists, you know, and they are really very good students. And I know from my time also कि हमें भी पढ़ाई बहुत आती थी, हमने बहुत रट्टे लगाए होते थे, अपने कोई प्रोजेक्टर्स ऐसे जुबानी याद किए होते थे. But when it comes to the training, because we are dental surgeons, we are not physicians that we just write down a prescription, patient will buy the medicine, eat it and he will be feeling fine better. So हमारी जो सर्जरी की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ लैकिंग है? बिकॉज मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें मैं ऑब्जर्वरशिप के लिए भी देती हूँ टाइम, और मैं जो उनको देखती हूँ कि दे आर नॉट, आई एम सॉरी टू से दैट, बेटा प्लीज डोंट माइंड इट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टार्ट अ रूट केनाल. ठीक है, और यू नो इफ आई गिव देम द अपॉर्चुनिटी कि भी ठीक है आप आयो, लेट्स यू नो डू इट, तो दे आर रिलक्टेंट टू डू इट. एंड व्हाई दे आर रिलक्टेंट टू डू इट? बिकॉज मैं समझती हूँ, एंड यू नो आई अपोलोजाइज, यू नो आई एम नॉट challenging anybody or saying anything bad about anything, but मुझे ये लगता है जैसे अभी आपने कहा कि वन टू डेंटिस्ट और होलिस्टिक अप्रोच है. मेरा जो ट्रेनिंग के दौरान जब मैं NYU में थी, हमारा फाइनल ईयर में क्या होता था कि हमारे पास मॉड्यूल सिस्टम था. वहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ एक दो कॉलेजेस हैं जो जहाँ पर मॉड्यूल सिस्टम चल रहा है पिछले 2-3 सालों से, बट नॉट इन ऑल द डेंटल कॉलेजेस. उसमें होता क्या था बच्चे, उसमें होता ये है कि हमें एक क्यूबिकल मिल जाता था जिसमें हमने हमारे पेशेंट को अपॉइंटमेंट्स हम देते थे, और उसके बाद ऑल काइंड ऑफ पेशेंट्स वी यूज्ड टू सी, जिसमें हमारे पास ऑर्थो का पेशेंट भी आ गया तो हमने उसको रेफ़र करना है क्योंकि वो हमारी स्पेशलिटी मेरी नहीं होती थी. अगर हमारे पास सर्जरी का आ गया तो जो बेसिक सर्जरी थी वो हम करते थे, रूट केनाल करनी है, फिलिंग करनी है, तो मुझे पता होता था मेरे आज 7 पेशेंट्स हैं, 10 पेशेंट्स हैं, व्हाटएवर, एंड आई एम गोइंग टू सी ऑल ऑफ दीज पेशेंट्स. ये नहीं कि मैं एक डिपार्टमेंट में गई हूँ और मैंने 2 महीने वहाँ पर सिर्फ एक्सट्रैक्शंस की हैं या वो जो की है, हर तरह के पेशेंट को. एंड देन नॉट ओनली दैट, व्हेन पेशेंट कम्स यू सी डिफरेंट पेशेंट, एवरीबडी think differently, they feel differently, they expect differently, you know, and they come from different you know social levels also. तो उनको जब आप इस तरह होलिस्टिकली आप ट्रीट करते हो ना, कि आपको पता है कि आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान हर तरह के पेशेंट को देखना है. सो वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम योर स्कूल, you are confident enough that you can open your own private practice, and yes, you can see any patient walks in your office. So मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, मेरी सजेशन ये हुई थी कि इस कॉलेज के करिकुलम के अंदर ये जो फाइनल ईयर के अंदर है उसको मॉड्यूल सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए, विच इज़ रियली गुड. और दूसरी चीज़ ये कि एक और चीज़ मैं सिर्फ कहूँगी एंड देन आई विल गिव द माइक टू यू, कि फाइनल ईयर के अंदर ही जैसा हमें होता था कि हमने 2 पेशेंट की प्रेजेंटेशन देनी होती थी, वो पेशेंट जो कि हमने the patient walked into my office till I completed the treatment. उसके अंदर हर तरह का प्रोसीजर, मैंने जितने ज़्यादा प्रोसीजर किए होते थे, I used to, you know, we used to keep that patient for our final presentation, कि हम ये बताएंगे कि जब पेशेंट आया हमने उसकी हिस्ट्री कैसे ली, हमने उसका ट्रीटमेंट प्लान कैसे बनाया, द सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट क्या था, और हमने किस तरह उसको फिर एग्जीक्यूट किया, और पेशेंट जब वॉकआउट किया तो he was or she was satisfied with the treatment we have given. I think एक क्वेश्चन था कि एक comprehensive patient care that has to be there.
and it has to be started in every college. There's no two things about it. इस context में we have taken initiative. I think नरमीन वगैरह की क्लास में पहली बारी हमने मॉड्यूल ऑफ कंप्लीट पेशेंट केयर को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है. बट जो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इट्स वेरी इजी टू से समथिंग कैन बी इंट्रोड्यूस्ड. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था. हाँ, प्रॉब्लम्स क्या थे? प्रॉब्लम ये है कि आवर 47 में, I'll go back to 1928 when D. Montmorency College of Dentistry was established and the first batch graduated in early 30s. उस वक्त से compartmentalized dentistry was established. हम लोग जाते हैं प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट में तो हमारा बाकी सारे दिमाग डिपार्टमेंट्स का जो है ना वो स्विच ऑफ हो जाता है. फिर सर्जरी में गए तो ऑपरेटिव को ऑफ कर दिया, बाकी तीनों को ऑफ कर दिया और एक को ऑन कर दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो इफेक्टिवली वो जो एक थॉट प्रोसेस होता है ना कि कॉम्प्रिहेंसिवली पेशेंट को देखना है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना है. अब उसके लिए जो डॉक्टर साइका बात कर रही हैं, दैट्स एन आइडियल सिचुएशन, सर्टनली इट शुड बी हैपनिंग. However, the whole infrastructure which has been developed at each of the dental colleges is based on the philosophy of multiple departments, compartmentalization. और जिसकी वजह से again the training faculty and all that, so उसको हम लोगों को अपने अपने कॉलेज में उसके local solutions लेके उसको हम लोगों को implement करना होगा. अच्छा, ये सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, हर कॉलेज में एक लेवल पे लिया जा रहा है. किसी जगह पे एक चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग होगी, दूसरी जगह पे दूसरी चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग होगी. एंड अगेन आई कम बैक अगेन, द इनिशिएटिव्स वी टेक, वी नीड बैकिंग एंड अडॉप्टेशन एंड enthusiastic participation of the main stakeholders which are the learners. ठीक है, तो मेरी सुई जो है ना वो अटकी